علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ بہت بہترین معلومات آپ حاصل کریں گے۔ وہ حضرات جو دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، بی ایم ایس کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کہ ایم ڈی، جب آپ بی ایم ایس کر لیں گے اور بی ایم ایس سے پہلے 1 سال کا جو پری طب کا کورس ہوتا ہے، یہ کورس کرنے کے بعد آپ جو ہے کہ بی ایم ایس کریں گے، اس کے بعد جو ہے کہ ایم ڈی کی پڑھائی کریں گے، اور اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہ رہیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو آپ کو اور آگے آپ کو کیا کرنا ہے، آگے کیا بننا ہے، کس طریقے سے کیا چیز کرنا ہوگا، وہاں پہ رہتے رہتے آپ جو ہے بخوبی جان سکتے ہیں۔ تو آج کے اس پی ڈی ایف میں ہم اسی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے بھائیوں نے یہ پی ڈی ایف کو مرتب کیا ہے، انہوں نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے مدارس اسلامیہ کے بچوں کے لیے، اور یہ ہر بچوں کو بڑے اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے اس پورے پی ڈی ایف کو، جو ہمارے ابو زرقوی صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، بہت مختصر بات کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو جو ہے کہ روک کر کے جو ہے پورے پی ڈی ایف کو آپ جو ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم بہت تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ فضلہ و فاضلات مدارس کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈاکٹر حکیم بننے کا موقع۔ تمہید: مدارس کے وہ طلباء و طالبات جنہوں نے کسی بڑے ادارے سے فضیلت کی ہے یا جو ابھی مدرسوں میں زیر تعلیم اور ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ طب یونانی اجمل خان طبیہ کالج میں پری طب قبل از طب کے نام سے بہت ہی مفید و کارآمد کورس موجود ہے۔ اس کورس میں داخلے لے کر فارغین مدارس بی ایم ایس ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ بی ایم ایس اور پری طب کا تعارف۔ کامل طب و جراحت۔ بی ایم ایس طب یونانی کا ایک اہم کورس ہے جو 5.5 سال کی مدت پر محیط ہے، جس میں 4.5 سال درسیات اور 1 سال طبابت کی مشق کے لیے مختص ہوتا ہے۔ وہ طلباء جو عصری تعلیم گاہوں سے ہائی اسکول اور انٹر سائڈ اسٹریم سے پاس کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بی ایم ایس میں داخلہ لینے کے مجاز ہوتے ہیں، جبکہ مدارس کے طلباء کے لیے 1 سال اضافی ہوتا ہے جسے پری طب قبل از طب کا نام دیا جاتا ہے۔ پری طب کے 1 سالہ کورس میں فزکس، علم طبیعیات، کیمسٹری، علم کیمیا اور بائیولوجی، علم حیاتیات وغیرہ کے درس ہوتے ہیں۔ پھر سالانہ امتحانات میں کامیابی کے بعد باقاعدہ بی ایم ایس کا کورس شروع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مدارس سے آنے والے طلباء کو اس کورس کو مکمل کرنے میں 5.5 سال کے بجائے 6.5 سال درکار ہوتے ہیں۔ داخلہ کے لیے ضروری شرائط۔ پری طب میں داخلہ انٹرنس ایگزام داخلہ امتحان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس امتحان کا ایک خاص نصاب ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس امتحان کے لیے کم از کم عمر داخلے کے سال 1 جولائی کو 16 سال ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عمر کی کوئی قید نہیں۔ داخلے کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ طالب علم نے CCIM مرکزی قومی کونسل برائے ہندی طب سے منظور شدہ کسی ادارے سے فضیلت کی سند حاصل کی ہو۔ ہندوستان کے کل 27 ادارے CCIM سے منظور ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ منظور شدہ اداروں کی فہرست۔ اب آپ یہاں پہ سارے جو ہے مدارس کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ منظور شدہ اداروں کی فہرست: دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، الجامعۃ الصفیہ مرکز، دارالعلوم وارانسی، یعنی کہ بہت سارے اس کے اندر مدارس ہیں۔ الجامعۃ الاسلامیہ اور دوسرے مدارس ہیں، بہت سارے مدرسوں کے نام ہیں، اس میں تقریباً 27 مدرسے ہیں۔ اگر ان مدارس اسلامیہ سے آپ نے فضیلت کیا ہے تو آپ جو ہے پری طب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔
नशिस्तें, अब इसमें नशिस्तें कितनी यानी कि सीट कितनी है। इस कोर्स में सिर्फ 10 सीट होती हैं, यानी इसमें दाखिले के लिए 10 तलबा को ही मुंतखब किया जाता है। इस कोर्स में अप्लाई करने का तरीका, अगर आप इम्तिहान देने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको ऑनलाइन एक फ़ार्म भरना होगा। आमतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर साल अप्रैल या मई में तमाम कोर्सेज़ के फ़ार्म निकालती है और ये फ़ार्म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.mu-controlexaminations.com पर दस्तयाब होते हैं। कोरोना की वजह से फ़ार्म आने में ताख़िर हो सकती है। फ़ार्म भरने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको उसी वेबसाइट पर अपनी आईडी बनानी होती है। आईडी का पासवर्ड याद रखें, एडमिट कार्ड निकालते वक्त काम आता है। फिर आपके सामने बहुत से कोर्सेज़ खुलकर आ जाते हैं जिसमें आपको अपना कोर्स मुंतखब करना होगा और फिर इसमें मतलूबा मालूमात, नाम, वालिदैन के पता और मदरसा का नाम वगैरह सही दुरुस्त स्पेलिंग के साथ दर्ज करनी होती है। साथ ही साथ फार्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मुंसलिक करने होते हैं, जैसे फाजिल की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, थंब प्रिंट, बाएं हाथ के अंगूठे के निचले हिस्से का अक्स और दस्तखत। अगर फार्म भरते वक्त आपका रिज़ल्ट ना आया हो तो अवेटिंग के खाने को पुर कर दें, लेकिन याद रहे कि दाखिला के वक्त ओरिजिनल मार्कशीट का होना ज़रूरी है, बग़ैर इसके दाखिले नहीं होगा। मज़कूरा तरतीब के मुताबिक पूरा फार्म भरने के बाद ऑनलाइन फ़ार्म की फ़ीस अदा कर दें और फार्म को महफूज कर लें। साल 2020 में फ़ार्म की फ़ीस 500 रुपये थी। इम्तिहान से 1 या 2 हफ़्ते पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mu-controlexamination.com पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाते हैं। आप अपनी आईडी के ज़रिए बासानी निकाल सकते हैं, जिसमें आपका रोल नंबर और इम्तिहान की जगह दर्ज होती है। फार्म भरने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहें ताकि इम्तिहान की तारीख़ वगैरह के मुतालिक मालूमात मिलती रहे। दाखिला इम्तिहान का निसाब, इस इम्तिहान में कुल 3 मज़ामीन के 2 इम्तिहान होते हैं। 3 मज़ामीन ये हैं, नंबर 1 उर्दू, नंबर 2 अरबी और नंबर 3 उलूम शर्क़िया। अरबी का पेपर 75 नंबर का होता है, जबकि उलूम शर्क़िया का पेपर भी 75 नंबर का और उर्दू का पेपर 60 नंबर का होता है। तीनों मज़ामीन के मजमूई नंबरात 210 होते हैं। अरबी और उलूम शर्क़िया का पेपर एक साथ सुबह की पहली नशिस्त में 9 बजे से 12 बजे तक होता है, जबकि उर्दू का पेपर दूसरी नशिस्त में दोपहर 3 से 5 बजे तक होता है। हम ज़ेल में तीनों मज़ामीन के निसाब को अलहदा दर्ज करने के साथ किताबों के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उर्दू का निसाब है। हिस्सा नस्र में है पत्थर का सूप, पत्थर का सूप, अत्थर परवेज़, हसरत मोहानी, 2 गज़ ज़मीन, खलाबाज ख़वातीन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आदिवासी ओलंपिक खेल, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अत्थर परवेज़ ये मुसन्निफ़ हैं इस किताब के। ये किताब बआसानी आपको जो है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर जो शमशाद मार्केट है वहाँ पे एक बुक डिपो वहाँ पर से आप हासिल कर सकते हैं। हिस्सा नज़्म में सुबह के नज़ारे हैं और एक मकड़ा और मक्खी, हमारी तारीख़ जानिसार, और ये उसके लिखने वाले एक साइड में मंजूर शुदा किताब है। अपनी ज़बान 7वीं जमात के लिए पहला उर्दू एडिशन फरवरी 2007, नासिर कौमी तालीमात तहकीकात व तरबियत, नई दिल्ली। आप जो है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये किताब हासिल कर सकते हैं शमशाद मार्केट में जाकर के। दर्ज बाला 11 असबाक, NCERT की किताब। दर्ज बाला 11 असबाक NCERT की किताब अपनी ज़बान बराए 7वीं जमात से माखूज़ है और ये असबाक किताब के आखिरी 11 असबाक हैं। अब आपको यहाँ पे ये भी बताया गया कि NCERT में भी आपको ये सारी चीज़ें जो है कि मिल जाएंगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इन तमाम चीज़ों पर जो है जो उर्दू का निसाब दिया हुआ है, मैं वीडियो भी बना सकता हूँ ये NCERT की बुक से। ये किताब आसानी से बाज़ार में दस्तयाब है। नीज़ इंटरनेट पर NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट NCERT की
ऑफिशियल वेब साइट लिंक्स से PDF में डाउनलोड की जा सकती है और इसी वेबसाइट के ज़रिए किताब ऑनलाइन भी ख़रीदी जा सकती है। देखिए काफ़ी अहम मालूमात है। अरबी का निसाब, अब अरबी का जो निसाब है, इसमें अरबी के निसाब में हिस्सा नस्र में अल-क़िराअतुल वाज़िया अल-जुज़ुस सालिस वहीदुज़्ज़मा किरानवी जो मदारिस में ये बुक चलती है। अल-क़िराअतुर राशिदा अल-जुज़ुल अव्वल अबुल हसन अली नदवी। हिस्सा नज़्म महासिनुश शेर अजमल अयूब इस्लाही। ग्रामर माजी मुज़ारे हाल मुस्तक़बिल अमरो नहीं की तारीफ़। गर्दान बनाने का तरीका। इस्म की अक़साम, इस्म ज़मीर, इस्म इशारा, इस्म मौसूल वगैरह। हरफ़ जार्रा, हरफ़ नफ़ी व इस्तिफ़ाम। मुआविन किताबें, और मुआविन किताबें ये हो सकती तमरीनुन नौ मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा नदवी, तमरीनुल सर्फ़ मौलाना मोइनुल्लाह नदवी, अरबी का मुअल्लिम मौलाना अब्दुल सत्तार ख़ान। तर्जमा व इंशा, उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू में तर्जमा व इंशा। किताब बराए मुताला मुअल्लिमुल इंशा हिस्सा अव्वल मौलाना अब्दुल माजिद नदवी जो मदारिस में ये सब किताबें चलती भी है। दर्ज बाला किताबों से मदारिस के तलबा पहले से वाकिफ़ होते हैं और ये तमाम किताबें आसानी से किसी आम मकतबे से हासिल की जा सकती हैं। किताब महासिनुश शेर से शायद सब वाकिफ़ ना हो तो अर्ज़ यह है कि ये किताब मदरसतुल इस्लाह सराय मीर आज़मगढ़ से छपी है। अलीगढ़ के मकतबों में आसानी से मिल जाती है। ऑल इंडिया मदारिस स्टूडेंट फोरम के टेलीग्राम चैनल से PDF में हासिल की जा सकती है। ऑल इंडिया मदरसा स्टूडेंट फोरम के टेलीग्राम चैनल से PDF में हासिल की जा सकती है। अब अगर आप इंस्टाग्राम को जो है अपलोड कर लें अपने मोबाइल में और वहाँ पर आप लिख दें कि हमें जो है महासिनुश शेर का PDF चाहिए तो वहाँ से आपको बासानी हासिल हो जाएगी। अब उलूम शर्क़िया पे आते हैं। उलूम शर्क़िया, इसमें उलूम शर्क़िया में इसका जो निसाब है इस्लामी शरीयत के बुनियादी माख़ज़ कुरान, हदीस और फ़िक़्ह। इस्लामी उलूम का इर्तिक़ा इल्म तफ़सीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म कलाम, मुसलमानों की तिब्बी ख़िदमत, इब्न सीना, ज़करिया राज़ी, इब्न बेतार, अबुल क़ासिम ज़हरावी, हकीम आज़म ख़ान, बनु उमैया और बनु अब्बास के अदवार के अहम इल्मी कारनामे। बर्रे सग़ीर के जदीद मुस्लिम मुफ़क्किरीन सर सैयद अहमद ख़ान, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान। मुआविन किताबें जैसे कि तारीख़ तिब व तिब्बा क़दीम अली हैदर जाफ़री, तारीख़ तिब्बो तिब्बा क़दीम हसन निगरामी, इस्लाम एक मुकम्मल दीन एक मुस्तकिल मज़हब उबैदुल्लाह अल असदी, इख्तियारात कासमी इकबाल कासमी। बर्रे सग़ीर के जदीद मुस्लिम मुफ़क्किरीन इकबाल अहमद कासमी। बैतुल हिकमत की तिब्बी ख़िदमत वसीम अहमद आज़मी, सर सैयद एक तारुफ़ खलीक अहमद निज़ामी, हयात अजमल क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, तारीख़ उलूम व शख़्सियात इस्लामी डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी, उलूम शर्क़िया गाइड डॉक्टर मोहिउद्दीन साजिद फ़लाही। इस मज़मून की तैयारी के लिए मुआविन किताबें के तहत दर्ज तमाम किताबें मुफीद हैं, लेकिन उमूमन तलबा उलूम शर्क़िया गाइड अज़ डॉक्टर मोहिउद्दीन साजिद फ़लाही को बुनियाद बनाते हैं। वजह यह है कि ये किताब बिलख़ुसूस अलीगढ़ के प्री तिब के दाखिले इम्तिहान के लिए मुरतब की गई और निसाब में दर्ज मौज़ूआत की तरतीब के लिहाज से सवाल जवाब की शक्ल में पेश की गई, जिससे तैयारी करने में सहूलत होती है और इस किताब से तकरीबन ज़रूरत पूरी हो जाती है। उलूम शर्क़िया गाइड पिछले कई सालों से नायाब हैं, अब बाज़ार में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। आसानी के लिए AIMSF के टेलीग्राम चैनल पर नोट्स की PDF अपलोड कर दी गई है, यानी कि ऑल इंडिया AIMSF के टेलीग्राम चैनल पर नोट्स की PDF अपलोड कर दी गई है, वहाँ से हासिल की जा सकती है। इसी सिलसिले की एक और मुफीद किताब तारीख़ उलूम व शख़्सियात इस्लामी अस डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी, किताब लिंक तारीख़ उलूम व शख़्सियात इस्लामी PDF। मशवरे और तजर्बात, अगर आप इम्तिहान देना और उसमें कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इसमें सख्त मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए कि प्री तिब में महज 10 सीटें होती हैं जबकि उम्मीदवार 500 से मुतजाविज़ होते हैं, यानी इस लिहाज से एक सीट के कम से कम 50 तलबा दावेदार होते हैं और इनमें से हर एक जान तोड़ करके कामयाबी
कामयाब होने की कोशिश करता है। लिहाजा आपको ये बात मद्देनज़र रखते हुए दिलो जान से मेहनत करनी होगी। निसाब में मौजूद तीनों मज़ामीन में से उर्दू और अरबी का निसाब नहायत आसान है, और वो तलबा जो मदारिस में तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और इल्म कलाम वगैरह की भारी भरकम और मुश्किल से मुश्किल किताबें पढ़ कर आते हैं, ये निसाब उनके आगे बाज़ीचे अतफ़ाल होता है। लेकिन इन दोनों मज़ामीन के सवालात की नौइयत कुछ ऐसी होती है कि बिल्कुल अरबी अव्वल के तालिब इल्म की तरफ पढ़ने और याद करने की ज़रूरत होती है। बसूरत दिगर ये आसान निसाब और आसान तरीन सवालात नाकामी का सबब बन जाते हैं। अरबी और उर्दू के अलावा तीसरा मज़मून उलूम शर्क़िया है, जो उन दोनों की बनिस्बत ज़रा मुश्किल है। हम ज़ेल में तीनों मज़ामीन के सवालात की नौइयत तैयार करने के तरीके और उससे मुताल्लिक़ चंद अहम व ज़रूरी बातें पेश कर रहे हैं। उर्दू पेपर के सवालात की नौइयत को समझने के लिए सबसे पहले पुराने पर्चों को ज़रूर देखें। पुराने पर्चों की PDF AIMSF के टेलीग्राम चैनल से हासिल की जा सकती है। उर्दू का पेपर नहायत आसान होता है। ये 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है। इसमें सवालात के 3 ग्रुप होते हैं, जिनमें कुल 20 सवालात पूछे जाते हैं। ग्रुप अलीफ में 2-2 नंबरों के 10 सवालात पूछे जाते हैं, जिनके जवाबात 1 या 2 अल्फाज में दिए जाते हैं। ग्रुप बे में 3 नंबर के 5 सवालात पूछे जाते हैं, जिनके जवाबात 1 या 2 सत्रों में तहरीर किए जाते हैं। और ग्रुप जीम में 5 नंबर के 5 सवालात पूछे जाते हैं, जिनके जवाबात 3 से 5 सत्रों में तहरीर किए जाते हैं। जवाब देते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि सवाल किस ग्रुप का है, लिहाजा 1 या 2 अल्फाज में जवाब देने वाले सवालात का 1 या 2 अल्फाज में जवाब दें। इससे ज़्यादा हरगिज़ कुछ ना दें। अच्छी तैयारी के लिए हर सबक को खूब गौर से पढ़िए। हर सबक के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात लिखें और उन्हें याद कीजिए। बेहतर होगा कि हर सबक को गौर से पढ़िए और हर सत्र से जो सवाल बन सकता है खुद से बनाइए और उसका जवाब लिखिए, क्योंकि गुज़श्ता सालों के सवालात की नौइयत कुछ ऐसी रही कि बज़ाहिर मामूली व गैर ज़रूरी लगने वाली बातें भी पूछ ली जाती हैं। निसाब में मौजूद तीनों नज़मों के नाम, हर नज़्म के शायर का नाम, नज़्म का पैगाम और उसका मरकज़ी ख़याल याद कर लीजिए, और अगर हो सके तो तीनों नज़्में ज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी इस नौइयत का सवाल भी पूछ लिया जाता है कि उसका जवाब देना उसी वक्त मुमकिन होता है जबकि नज़्म याद हो। बेहतर होगा कि सबसे पहले पुराने पर्चों के सवालात हल करें, क्योंकि हर साल कई सवालात पुराने पर्चों से आते हैं। उर्दू की इस किताब की तैयारी में इस गाइड की रहबर अपनी ज़बान 7वीं जमात के लिए बहुत मुफीद साबित होगी, जिसमें सवालात के जवाबात और नज़मों की तशरीह मौजूद। अगर आप ये किताब हासिल करना चाहते हैं तो दर्ज झेल पता से हासिल कर सकते हैं। नाम किताब, रहबर अपनी ज़बान और उर्दू गुलदस्ता, 7वीं जमात के लिए मुकम्मल गाइड। मुअल्लिफ मोहम्मद शमशाद आलम राही, MA उर्दू BEd, नज़र सानी रज़िया सुल्ताना, MA उर्दू। तो ग्रीन पब्लिशिंग हाउस, एजुकेशनल पब्लिशर, नैन बुक सेलर, पहाड़ी इमली बाज़ार, मटिया महल, दिल्ली से ये किताबें आपको मिल सकती हैं। अब इसी तरीके से अरबी के बारे में है। अरबी इस पेपर के सवालात की नौइयत को समझने के लिए पहले पुराने पर्चे देखें। अरबी के पर्चे में मुख्तलिफ़ नौइयतों के कुल 6 सवालात पूछे जाते हैं, जिनके मजमूई नंबर 75 होते हैं। हर नौइयत के सवाल के मुतालिक चंद बातें मुलाहिज़ा करें। पहले सवाल में उमूमन अल-क़िराअतुल वाज़िया हिस्सा सौम की एक इबारत दी जाती है, जिसके नीचे 10 सवालात होते हैं और इबारत पढ़कर उन सवालों के जवाबात देने होते हैं। ये सवाल 20 नंबर का होता है। ये सवाल हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से इन तमाम असबाक की निशानदेही और अच्छी तरह तैयारी कर लें, जिनमें 10 या 10 से ज़ायद सवालात होते हैं, जो कि किताब में सबक के आखिर में दर्ज होते हैं। बेहतर होगा कि आप ख़ुद उन सवालात के जवाब तैयार करें, वरना अल-क़िराअतुल वाज़िया हिस्सा सौम की उर्दू शरह अद-दिरायतुन नाफ़िया अज़ मौलाना मसलिहुद्दीन कासमी ख़रीद लें, जिसमें हर सबक के उर्दू तर्जमा के साथ सवालात के जवाबात भी लिखे गए। यह किताब दर्ज झेल पते से हासिल की जा सकती है। रैयान बुक डिपो, देवबंद UP से। अब यहाँ पे भी दिया है दूसरा सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल 20 नंबर का महासिन शेर से आता है, जिसमें दिए गए 10 अशार का उर्दू या अंग्रेज़ी में तर्जमा करना होता है। इस सवाल को हल करने के लिए आप महासिन शेर हिस्सा अव्वल को पढ़ें और उसका तर्जमा कर लें। बहुत से तलबा अरबी अशार का तर्जमा करने पर कादिर नहीं होते हैं और उन्हें तर्जमा में दुश्वारी होती है। इनकी आसानी के लिए एक तालिब इल्म के ज़रिए किए गए तर्जमा की PDF ऑल इंडिया मदरसा फ़ोरम के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। इससे इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। तकरीबन हर साल
हर साल पिछले सालों में पूछे गए अशार का तर्जमा पूछा जाता है, लिहाजा पिछले सालों के पर्चों में देखकर उन्हें खूब अज़बर कर लें। और कभी एक दो अशार किताब के बाहर से भी आ जाते हैं, इसलिए भी तैयारी रहे। तीसरे सवाल में किसी एक सबक का खुलासा मतलूब होता है और ये सवाल 10 नंबर का होता है। अक्सर व बेशतर अल-क़िराअतुल वाज़िहा हिस्सा सोम के किसी सबक का खुलासा पूछा जाता है, लेकिन कभी अल-क़िराअतुर राशिदा हिस्सा अव्वल के किसी सबक का खुलासा तहरीर करने को कहा जाता है। आमतौर पर इसी सबक का खुलासा मांगा जाता है जिसमें कोई अहम पैगाम दिया गया हो, लेकिन यह हतमी बात नहीं बल्कि किसी भी सबक का खुलासा पूछा जा सकता है, इसलिए तमाम असबाक को खुलासा जहन में रहना चाहिए। ये खुलासा अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू तीनों ज़बानों में से किसी ज़बान में भी लिख सकते हैं, लेकिन अरबी और अंग्रेज़ी में उसी वक्त लिखें जबकि आपको उन ज़बानों पर अच्छी कुदरत हासिल हो, वरना उर्दू में ही लिखें। चौथे सवाल में चंद नहवी व सरफ़ी इस्तिलाहात व क़वाइद के मुताल्लिक़ पूछा जाता है और यह सवाल 10 नंबर का होता है। इसी में आम तौर पर हुरूफ़ जार्रा, अस्माए मौसूला और अमरो नहीं की तारीफ़ात वगैरह पूछी जाती है। उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी कि आप ये बुनियादी क़वाइद व तारीफ़ात किसी किताब की मदद से लिख कर अच्छी तरह याद कर लें। पाँचवें सवाल में अरबी के चंद अल्फाज दिए जाते हैं जिन्हें आप जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। यह सवाल 5 नंबर का होता है। यूँ तो आप इन अल्फाज को अपने जुमलों में किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये अल्फाज अल-क़िराअतुर राशिदा और क़िराअतुल वाज़िहा में जिस तरह इस्तेमाल होते हैं इसी तरह इस्तेमाल कीजिए। छठे सवाल में उर्दू के चंद जुमले दिए जाते हैं जिनका अरबी में तर्जमा मतलूब होता है। यह सवाल 10 नंबर का होता है। जुमले नहायत सादा और आसान होते हैं, लिहाजा आप तर्जमा भी सीधा ही कर लें। भारी भरकम ताबीरात और तराकीब इस्तेमाल करके सलाहियत का मुज़ाहिरा करने से गुरेज करें। मेरा ख़्याल है कि जुमले किताब मिनहाजुल अरबिया से माखूज़ होते हैं। अगर वक्त मिले तो उस छोटी सी किताब की तमरीनात पर भी एक नज़र डालना। उलूम शर्क़िया में हम आते हैं। उलूम शर्क़िया का इम्तिहान 75 नंबर का होता है। उर्दू और अरबी के मुकाबले ये मज़मून ज़्यादा वसी है और मेहनत तलब भी है, इसलिए इसकी तैयारी में ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। इसमें 5 सवालात पूछे जाते हैं और हर सवाल 15 नंबर का होता है। इस पर्चे में दरअसल किसी मौजू पर मज़मून लिखने का मुतालबा होता है। सवाल के नीचे 20, 22 सतरें छोटी होती हैं जिन पर मज़मून लिखना होता है। इस पर्चे में अच्छे नंबरात हासिल करना हर उम्मीदवार के लिए चैलेंज होता है। इसके मुताल्लिक़ याद रखें कि उमूमन निसाब में मौजूद 5 अबवाब में से एक सवाल आता है। चूँकि जवाब देने के लिए 17 महदूद होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद हर मौजू के मुताल्लिक़ मवाद से भरपूर मुख्तसर मज़ामीन तैयार करें और उन्हें खूब ज़हन नशीन कर लें। अगर मुमकिन हो तो ज़बानी याद कर लें। मज़ामीन की तैयारी में उलूम शर्क़िया गाइड के अलावा निसाब के सफ़े पर दर्ज मुआविन किताबों से भी मदद लें तो सोने पर सुहागा है। गर्ज़ ये 20-22 सत्रों की महदूद सी जगह में जो भी मज़मून लिखें वो मवाद से भरपूर हों। लफ्फ़ाज़ी और लन तरानियों से मुकम्मल एतराज़ करें। मवाद से भरपूर मज़मून अच्छे नंबरात का ज़ामिन है, जबकि लफ्फ़ाज़ी और लन तरानी से नंबरात मुतासर होने का ख़दशा है। बेहतर होगा कि सबसे पहले वो मज़ामीन तैयार करें जो गुज़िश्ता सालों के इम्तिहानात में पूछे गए, क्योंकि बेशतर सवालात पिछले पर्चों से आते हैं। उलूम शर्क़िया के मज़ामीन की तैयारी में किताब तारीख़ तिब व अखलाक़ियात अज़ हकीम अशहर क़दीर से भी मदद लें तो बेहतर होगा। इस किताब में इख्तिसार के साथ खूब मवाद फ़राहम किया गया जो कि बहुत मुफीद व कारआमद है। ये किताब दर्ज झेल पते से हासिल की जा सकती है। पता देख लीजिए। ये किताब कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के मालूम गफ़्फ़ार मंजिल जामिया नगर नई दिल्ली, यहाँ से ये किताब आपको तारीख़ तिब व अखलाक़ियात यहाँ से मिल जाएंगी। नोट वाज़ह है कि अरबी और उलूम शर्क़िया दोनों मज़ामीन के पेपर एक साथ होते हैं और वक्त महज 3 घंटे का होता है, इसलिए ज़रूरी है कि तैयारी खूब अच्छी करें ताकि इम्तिहान हाल में सोचने और गौर व फिक्र करने में वक्त ज़ाय ना हो और वक्त रहते दोनों मज़ामीन के जवाबात मुकम्मल कर लिए जाएँ। तैयारी के साथ साथ मज़ामीन लिखने की मशक़ ज़रूर करते रहें ताकि आपको अपने लिखने की स्पीड मालूम हो सके और ये भी अंदाज़ा हो सके कि आपके मज़मून में कितना मवाद है। फ़ीस आमतौर पर MU में प्रीतिब की फ़ीस के मुताल्लिक़ करते हैं, तो 2020 में प्रीतिब की सालाना फ़ीस कमोबेश 10,000 थी और फिर BUMS में हर साल की फ़ीस तकरीबन 12,500
12,500 ہے۔ غرض کے پرائیویٹ کالجز اور جامعہ ہمدرد وغیرہ کے مقابلے میں علی گڑھ کی فیس نہایت معمولی ہے۔ مزید طلباء کی رہائش کا انتظام بھی یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے، البتہ طالب علم کو ہر مہینے کھانے کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے جو کہ 2020 میں 1100 تھی۔ ہم نے اس مضمون میں پری طب کے متعلق ہر چھوٹی بڑی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی تاکہ تیاری کرنے والوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ شریف میں نہ آئی ہو یا کسی قسم کی الجھن ہو یا سوال ہو تو شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک آپ ہمیں 8127930041 پر کال کر سکتے ہیں۔ نوٹ نمبر 2، اس PDF میں جہاں کہیں بھی تحریر کو نیلے رنگ میں لکھا گیا اس پر کلک کرنے سے آپ اپنے مطلوبہ لنک پر پہنچ جائیں گے، مگر یہ یاد رکھیں کہ ٹیلی گرام چینل کے PDF تک آپ اسی وقت رسائی حاصل کر سکیں گے جب آپ کے موبائل لیپ ٹاپ میں ٹیلی گرام ایپ موجود ہو۔ کتابوں کے PDF کی ٹیلی گرام نوٹ، اگر آپ کے پاس ٹیلی گرام ایپ ہے تبھی آپ ان PDFs کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اردو کلاس 7 PDF اردو PDF، محاسن الشعر جزء اول، محاسن الشعر PDF، محاسن الشعر اردو ترجمہ، علوم شرقیہ نوٹس، علوم شرقیہ نوٹس، تاریخ طب و شخصیات علوم شرقیہ PDF، تاریخ طب، القراءۃ الواضحہ، القراءۃ الراشدہ۔ کافی خوبصورت اور بہترین کام جو ہے ابو ذر قوی صاحب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد ابو ذر قوی لکھنوی کو اور محمد عادل خان جامعہ ہمدرد کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ تمام کی تمام PDF بھی اس میں موجود ہیں، اور جو حضرات ابھی ہم سے یہ PDF لینا چاہتے ہیں آپ ہمیں جو ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل پر کمنٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ موبائل نمبر بھی دے دیں گے تو ہم ان کے موبائل نمبر پہ اس PDF کو، جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی، پوری PDF آپ کے موبائل پر جو ہے کہ میں سینڈ کر دوں گا۔ اگر آپ میرا بھی موبائل نمبر جاننا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر ہے 9634899869۔ اور دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ کافی اہم معلومات اور بہترین PDF میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پڑھ میں نے اس لیے دیا تاکہ جو ہے کہ بہت سارے لوگ سن لیں گے تو بہت ساری چیزیں انہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔